कहा कि नोटबंदी से लोगों का काला धन और काला मन सामने आया है. He spoke how demonetization has led to the revelations of kala dhan and kala man, which is wrongful intent and black money. We would again like to raise the question of the entries made in the Sahara and Birla diaries. Sahara की डायरीज में और बिरला की डायरीज में जो एंट्रीज हुई हैं कच्चे खातों में उनके, वो प्रश्न हम आज आपके सामने उठा रहे हैं और कुछ नए तथ्य आपके सामने रख रहे हैं. एट द एंड ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी ऑफिस विल गिव यू द इंटायर अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन द बिरला केस. 1000 पन्नों की ऊपर की ये रिपोर्ट होगी, इनकम टैक्स अप्रेजल रिपोर्ट, और इसकी सॉफ्ट कॉपी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सभी लोगों को दे देंगे. और उससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यूपीए की सरकार और मोदी जी दोनों के काले धन और काले मन के बारे में आप खुद आकलन कर सकते हैं. 15 अक्टूबर 2013 को जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिरला के यहां रेड करी और उस रेड में 25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ. साथ में बहुत सारी डायरीज, लैपटॉप और तमाम अन्य कागजात भी बरामद हुए. उसमें से एक एंट्री पिछले 1 महीने से पब्लिक डोमेन में है, जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में जनता के सामने रखी थी. वो एंट्री है 16 नवंबर 2012 की. गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 डन, रेस्ट क्वेश्चन मार्क. इसके अलावा बहुत सारी एंट्रीज उस अप्रेजल रिपोर्ट में है जो तमाम नेताओं को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करती हैं. मैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण एंट्रीज आपके सामने रखना चाहता हूं. 7.5 करोड़ रुपए की एंट्रीज प्रोजेक्ट जे के नाम पर है, और ये सारी एंट्रीज 2012 के 1 महीने के अंदर ये सारी एंट्रीज हैं. प्रोजेक्ट जे एंट्रीज ऑफ एंट्रीज ऑफ 7.5 करोड़ मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month in 2012. So the entries से क्या मतलब है? The money given. Money given. See, these diaries and these papers seized from Birla and Sahara, they show on one hand money being received or incoming cash in these two companies and the outgoing cash. पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है. ये पैसा कैश में आ रहा है, पैसा कैश में जा रहा है. तो 7.5 करोड़ रुपए की एंट्री प्रोजेक्ट जे के नाम में है. गुजरात सीएम की एंट्री का कोई वो है, कितने की एंट्री होगी? 25 करोड़ entry made on 16th of November 2012. Yeah, I will take the question later. Just let me just finish this. फिर एक एंट्री है 5 करोड़ रुपीस की, and this is for झिल plus RJM. Now we all know, and these are all irrefutable facts. उड़ीसा में SL कंपनी जो है, वो बिरला की सिस्टर कंपनी है. वहां पर झिलिंग में उनकी माइंस हैं, और एनवायरमेंट क्लियरेंस was granted for the expansion of Jhiling Langlota iron and manganese ore mining on 7th of June 2012. These are all facts which are in public domain. कि उसके लिए पर्यावरण क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 7 जून 2012 को
झिलिंग लंगलोटा आयरन एंड मैंगनीज और माइनिंग के लिए दी थी. Now the diary is mentioned payment for Jhil plus RJM in the period of June to August 2012. The clearance was given in the month of June and the entries of 7.5 crores are made in the period of June to August 2012. Now, doesn't this require investigation? Number one. Number two, I just said the entries made of 7.5 crores in the name of Project J, Ministry of Environment and Forest. Now, who is Project J and what does J stand for? Doesn't this require investigation? That's my question number two. There is another fact. Justice M.B. Shah Commission's report says that the particular company in question has encroached on areas beyond the allotted lease area. And there is another SL mine called Unchal Bali, which was found to have been operating without environmental clearance. Now, these two additional facts, all the more, make it extremely necessary that a detailed investigation should have been carried out, because there are irregularities which have been well documented in Justice M.B. Shah Commission's report. Now, there's a department called Directorate of Revenue Intelligence. His Birla diaries show that they were in regular touch with DRI in matters which were under investigation. I will just read out what these diaries say about Directorate of Revenue Intelligence and the ongoing investigations related to various companies of Birla Group. In an email written by one Mr. Bhuvan Chandra to Shubhendu Amitabh, both are senior Birla executives, dated 15th of April 2013, titled Tourists, he emphasizes, he says, DRI had to circumvent its investigations into other cases. He further states that they have been able to overcome this hurdle, making best use of our sources. Furthermore, he adds, as agreed upon, the investigations have been restricted to exports of iron ore alone. No other can of worms has been opened / focused. I will again read this email. DRI had to circumvent its investigations into other cases. They had been able to overcome this hurdle, which means Birla Group has been able to overcome this hurdle, making best use of our sources. As agreed upon, the investigations have been restricted. The DRI investigations have been restricted to exports of iron ore alone. No other can of worms has been opened / focused. In another email sent by Mr. Bhuvan Chandra to Shubhendu Amitabh, dated 3rd of May 2013, he states that they have once again advised us to move fast on the issue so that they can start the process of drafting SCN immediately and submit it for the approval of the competent authority without further loss of time. Accordingly, suggests immediate action on the delivery of commitments so that the process of show cause can be expedited and the issue is put behind us. कह रहे हैं कि इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन जा रहा है, हमने जो कमिटमेंट्स किया है उसकी डिलीवरी हम जल्दी कर दें जिससे ये इशू खत्म किया जा सके. So there are several such emails which talk about the ongoing DRI investigations. There is an entry dated 13th May 2013, and this is a message sent from Mr. Shubhendu Amitabh to himself. It gives a list of transactions to various parties, including RKK 10 crore, bracket 1.5 crore OK,
Then there is an entry called Virappa M, GC / cement op / CCI report / penalty 2 crore. Okay. I will again read the entry. Virappa M / GC / cement op / CCI report / penalty / 2 crore. Okay. Now, we don't know who is Virappa M. This should have been investigated. But we do know that there was a Minister of Corporate Affairs at that time who has a strikingly similar name. And CCI, we know, is Competition Commission of India. And we also know that a hefty penalty was imposed by the Competition Commission of India on the Aditya Birla Group cement business along with other cement businesses. So what was this about? It talks about Competition Commission of India. It talks about one Mr. Virappa M, and then it says 2 crores. Okay. So what is exactly said? Receive. No, it just says 2 crores. Okay. Then there's another email which is, and they state that Mahan matter MOEF. Mahan, you know, is a mine. Mahan. Mahan matter MOEF. MOEF, Ministry of Environment and Forest. 9 crore final. Bracket 20 crores. Initially only if done on 1st of March 2012. Okay. Now, interestingly, when this raid was carried out, there was one Anand Kumar Saxena, who was DGM accounts, who was found in possession of the keys to a cupboard where 25 crore rupees were found. When Mr. Anand Kumar Saxena was questioned by the Income Tax Department, he said that all this money belongs to Mr. Shubhendu Amitabh. He said that he was merely the recipient of the money coming in at the office situated at Connaught Place. He said that his job was only to receive money from Hawala operators and do proper accounting, and as and when the money was flowing out, again do the proper accounting, which is just to make entries. Now, when Mr. Shubhendu Amitabh was raided upon, his house too was raided. His laptop was seized. And from his laptop, a document running into 7 pages was recovered. This document lists out all the business interests that Birla Group had and continues to have in the state of Gujarat. And it's a very well made report, 7-page report, 1, 2, 3, 4 columns. And it talks about business interests of Birla Group in Gujarat, the pending issues with pertaining to each of these projects or business interests. कहीं कोई क्लियरेंस पेंडिंग है सरकार के पास, कहीं कोई परमिशन पेंडिंग है सरकार के पास, कहीं कोई अपील पेंडिंग है सरकार के पास, and the efforts being made by the Sahara Group to get those matters resolved and the help that they have been receiving. Now, there is an entry here, and the entry says Ultratech Cement, Magdala, Surat, levy of stamp duty for goods received at captive jetty Surat. Matter has been taken up at the principal secretary level and through the Honorable Chief Minister's office, Gandhinagar. Deputy Collector of Stamp Duty Surat has been instructed from Gandhinagar not to initiate any action till further notice. There is another entry
and it talks about some gas that Birla Group required from GPCC, which is 100% owned Gujarat government company, Gujarat Petroleum Corporation, GPCC, and they required some gas, and they said that they are pursuing this matter with the Chief Minister's office. Now, under these circumstances, इस सारे सबूतों को अगर आप मद्देनजर रखें, ये सिर्फ एक एंट्री का सवाल नहीं है, ये 1000 पेजेस के एविडेंस का सवाल है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ा कॉरपोरेशन, बड़ा बिजनेस हाउस, जिसके बिजनेस इंटरेस्ट गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश तक, जगह जगह उनकी कंपनीज हैं, उनकी आयरन ओर्स हैं, उनकी खदानें हैं, वो तमाम सरकारों के साथ डील कर रहे हैं। गुजरात सरकार के साथ भी डील कर रहे थे, केंद्र सरकार के साथ भी डील कर रहे थे, केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से, उनकी तमाम ट्रांजैक्शंस चल रहे थे। और उस संदर्भ में उन्होंने तमाम एंट्रीज करी हैं जहां पर वो पैसे की बात कर रहे हैं देने की, कहीं प्रोजेक्ट जे को, कहीं वीरप्पा एम को, कहीं आर झील को, कहीं गुजरात सीएम को। और ये सारे दस्तावेज और ये सबूत अक्टूबर 2013 में कांग्रेस की सरकार के पास थे, तो क्या इनकी जांच नहीं करवानी चाहिए थी? क्या डीआरआई किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, इसकी जांच नहीं करवानी चाहिए थी? कोई भी जांच नहीं हुई। और इसी अप्रेजल रिपोर्ट में, अभी आप लोग को पूरी कॉपी मिल जाएगी, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, ये लिखा गया है कि जब शुभेंदु अमिताभ, जो बिरला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव थे, जब उनसे पूछताछ हुई, तो पूछताछ के दौरान उन्होंने जो भी स्पष्टीकरण दिया इन तमाम एंट्रीज के बारे में, वो स्पष्टीकरण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को झूठा लगा। और खुद इन्वेस्टिगेशन और खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है अपनी रिपोर्ट में कि इसकी जांच हमें आगे और करनी चाहिए। तो ये कागज सीबीआई को सौंपे जाने चाहिए थे, इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, ये कागज ईडी को सौंपे जाने चाहिए थे, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर होना चाहिए था। लेकिन ना ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, ना आईपीसी के किसी और दफा के तहत इन कागजों की और इन कागजों में जो लेन देन की बात है उसकी कोई जांच हुई। इसी तरह जब नवंबर 2014 में मोदी जी की सरकार बन चुकी थी, उस वक्त सहारा ग्रुप के ऊपर रेड हुई, 125 करोड़ रुपए करीब रेड में बरामद हुए, और वहां से भी डायरीज मिली, और उन डायरीज में भी मोदी जी का नाम है, 7 एंट्रीज हैं, 40 करोड़ 7 लाख की, लेकिन बाकी लोगों के नाम भी एंट्रीज हैं। तो यूपीए के दौरान जब खुद यूपीए के मिनिस्टर्स की और मोदी जी के नाम की डायरीज मिलती हैं और सबूत मिलते हैं कि उनको घूस दी गई, तो कांग्रेस उस पर खामोश रहती है। और जब मोदी जी की सरकार आ जाती है और सहारा के ऊपर रेड होती है और उसमें एंट्रीज मिलती हैं जिसमें घूस देने की बात लिखी गई है मोदी जी को और तथाकथित कांग्रेस के तमाम और मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को, और मोदी जी की कैबिनेट में इस समय वर्तमान तमाम मंत्रियों को, तो उस पर मोदी जी खामोश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों, कांग्रेस और मोदी जी दोनों मिलकर ये नहीं चाहते हैं कि इन कागजों की जांच हो और ये पता चले कि कैसे जो काला धन है उसी से बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स को और यहां तक के प्रधानमंत्री को घूस दी जा रही है। तो अगर खुद प्रधानमंत्री शक के घेरे में है, तो क्या देश काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है? सवाल ये है। एक अंग्रेजी में कहावत है that Caesar's wife should be above suspicion। प्रधानमंत्री के नाम पर घूस देने की बात सहारा की डायरीज में लिखी हुई है।
प्रधानमंत्री के नाम पर घूस देने की बात बिरला की डायरीज में लिखी हुई है, और ये एक एंट्री नहीं, कई एंट्रीज हैं, और एक संदर्भ में लिखी हुई एंट्रीज हैं, और तमाम और नेताओं को भी घूस देने की बात लिखी हुई है। तो ऐसे में हम काले धन के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? और अगर रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गंगा से भी ज्यादा पवित्र हैं, तो अगर वो गंगा से भी ज्यादा पवित्र हैं तो फिर उन्हें इस मामले की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि जो सच जो पाक साफ है, जिसको जो सच्चा इंसान है उसको किसी भी जांच से डरना नहीं चाहिए। तो हमारी यही मांग है कि प्रधानमंत्री जी इसकी सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर प्रधानमंत्री जी अपने वकील को निर्देश दें कि अगली सुनवाई में वो खुद सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये कहे कि हम इस मामले की पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक तटस्थ इन्वेस्टिगेशन टीम से करवाने के लिए तैयार है। आशीष, वीरप्पा एम लिखा है and there's no confirmation that it's him, पर आपका रेफरेंस सीधा आता है कांग्रेस फॉर्मर मिनिस्टर पे, कोई तो ऐसा मेंशन उसमें है नहीं। It could be, I'm just saying, it could be anybody. It could be anything. हाँ, so then how are you coming to a conclusion that it is former minister Veerappa Moily? Because again that's an allegation and that's very defamatory also. तो आपके पास फिर कैसा factual evidence है जिसपे आपके नाम है? If you have heard me correctly, Yeah. I said that there are entries in the name of Project J. There are entries in the name of Gujarat CM, who at that time was Mr. Modi himself. There are entries in the name of Veerappa M. Yes. These are all irrefutable facts. Doesn't this warrant a detailed, independent and fair investigation? It could be anybody. If it is not, अगर प्रधानमंत्री जी ने घूस नहीं ली है तो इसकी जांच करवाने में क्या दिक्कत है? जांच हो जाए, एक तटस्थ टीम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए, जिससे ये वाकई पता तो चले देश को कि वाकई क्या प्रधानमंत्री जी गंगा की तरह पवित्र हैं? Sir, the Supreme Court has clearly said, I mean twice, it is not even the smallest of evidence. We cannot take it into cognizance. I am saying that Supreme Court has till date only been shown one entry. I am talking about 1,000 pages of evidence, which we will be circulating after this press conference. So all those have not been submitted yet. To the best of my knowledge, those papers have not been submitted. 1,000 pages of evidence, names sounding strikingly similar to various ex-ministers figure in those papers. There is a reference. They talk about specific projects. They talk about specific payouts to specific people for specific reasons. Shouldn't this be investigated? Sir, abhi, does this mean that basically Rahul Gandhi raised the issue yesterday? So Aam Aadmi Party is also trying to come forth and say that, okay, Arvind Kejriwal raised it first. Rahul Gandhi is jumping into it without realizing his own people are involved. Is that what you're saying? You're saying basically that both these parties are involved and Rahul Gandhi has no right to be raising this issue. I'm trying to understand political ramifications. Why is the Aam Aadmi Party now suddenly bringing in the Congress? पहले तो Congress नहीं mention हुआ था जब CM ने assembly में बोला था. See, when we got this full report, we have immediately placed the facts on record. Now we are placing all these facts on record, and I think several newspapers in the past also partially reported about Project J. तो सर क्या ये 1000 का पेज का जो दस्तावेज है लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण गए थे तो वो तो इनकार कर दिया। हम उन्हीं को देंगे। वो friendship आशीष ban जी, और और कोई आशीष जी किन लोगों की एंट्री आप बीजेपी ने सिर्फ पीएम तक रखा, आप ही बताइए ना। वो बता तो दिया ना। मतलब आशीष reference हल्का जी एक सवाल है, अभी जो नोटबंदी को लेकर के छोटे छोटे बिजनेसमैन के पास 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आप ले रहे हैं, अमाउंट बहुत कम है, तो कितना ऑथेंटिक माना जाए इस डेटा को? नहीं, अब 40 करोड़ कम अमाउंट आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कि 40 करोड़। जितने बड़े लोगों के नाम आप ले रहे हैं उस हिसाब से ये अमाउंट कम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने रेट में इनकम टैक्स मारे उसमें छोटे छोटे बिजनेसमैन के पास 100-200 करोड़ निकल रहे हैं, तो जितने बड़े लोगों के नाम आप ले रहे हैं उसमें ये अमाउंट क्या आपको नहीं लगता बहुत कम है? देखिए, आज जहाँ पर देश में आम आदमी को 2000 रुपये नहीं मिल रहा है, वहाँ पर किसी के नाम के आगे 40 करोड़ 7 लाख लिखे हुए हैं, फिर प्रधानमंत्री जी के नाम पे 25 करोड़ लिखे गए हैं, फिर किसी के नाम के आगे 7.5 करोड़ लिखे गए हैं।
मुझे लग रहा है कि चाहे करप्शन 40 करोड़ का हो, चाहे 50 करोड़ का हो, चाहे 5 करोड़ का हो, करप्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी पे मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या ये लगता है कि ऑथेंटिक? मेरा काम थोड़ी ना है कि इसको ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट देना। सर इसकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, तटस्थ जांच हो। सर पीएम स्पीच आज आपने सुनी होगी, काफी देर तक बोले, काफी अटैक्स किए हैं, तो इफ ईदर ऑफ यू वांट टू रिस्पोंड ऑन इट, बेसिकली उनका चार्ज कांग्रेस पे ही था, बट हाउ डू यू लुक एट दैट? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक नोकझोंक का मामला नहीं है। प्रधानमंत्री इसको मोदी बनाम राहुल गांधी बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार, ये लड़ाई ईमानदार राजनीति बनाम काला धन, ये लड़ाई है। असली लड़ाई ये है देश के सामने। ईमानदार राजनीति एक तरफ है, दूसरी तरफ बेईमान राजनीति है। ये मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी इसको मोदी बनाम राहुल गांधी बनाने में इच्छुक हैं, दिलचस्पी उनकी इसी में है, क्योंकि राहुल गांधी जी मोदी के भ्रष्टाचार के बारे में बोलेंगे, मोदी जी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में बोलेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से वो इस बात पर डिबेट नहीं करना चाहते हैं। मुझे पता चला है कि अब टीवी चैनलों में जो डिबेट्स होती हैं, वहां पर जब आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता बैठे होते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता उठ के चले जाते हैं, या पहले से कहा जाता है कि अगर डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आएंगे तो हम उस डिबेट में शामिल नहीं होंगे, हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ बहस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ये है कि जब तक ये लड़ाई मोदी बनाम राहुल गांधी रहेगी तब तक वो हमारे पक्ष में लड़ाई रहेगी, बीजेपी के पक्ष वो में कह रहे रहेगी। हैं आपका लोकल स्टैंड नहीं होता है यूजुअली इश्यूज पे, एंड क्यों दैट नहीं? इज सबसे पहले ये बिरला डायरीज और सहारा की डायरी हमने विधानसभा में रखी। 1 महीने से पूरे देश में अरविंद केजरीवाल रैलियों में इन डायरीज को दिखा रहे हैं, हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो कह रहे थे मैं बोलूंगा, बहुत उनको पुश करने के बाद उन्होंने कल बोला, हम तो 1.5 महीने से बोल रहे हैं। सर, क्या आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी बनाना चाहती है? ईमानदारी मैंने आपको कहा, ये लड़ाई एक तरफ ईमानदार राजनीति की है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और काले धन की राजनीति। रिपोर्ट दीजिए सर। चलिए सर।